Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. सो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का विस्तास बुक से पढ़ेंगे जिसका नेम है शुड विजार्ड हिट द मॉमी जिसके ऑथर हैं जॉन अपडाइक राइट। सो इस पूरे चैप्टर को एक बार मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी और एक बार मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ राइट। सो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश को ध्यान से सुनेंगे, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे राइट स्टूडेंट्स। सो हियर वी गो। पेज नंबर्स आप अपने आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार समरी पूरी इंग्लिश में और एक पूरी हिंदी में समझाने जा रही हूँ। So every Saturday evening, Jack told his daughter Jo a story, and this ritual was begun when Jo was 2 years old, and now Jo was 4. Jack's story's main character was always Roger, and he used to change him to Roger Chipmunk, Roger Squirrel, or Roger Fish. But today it was Roger Skunk. Now Jack started narrating the story to Joe. ठीक है, अब जैक जो को स्टोरी सुनाने जा रहा है राइट। Roger's skunk smelled very bad, and all the other animals of the forest used to ignore him because of his bad smell and called him Stinky Skunk. Joe was very sad to find that how other animals used to treat Roger's skunk. Okay, she was very sad when she heard this. Joe now asked her daddy Jack if he would not see the owl. Jack said that now Roger Skunk decided to meet the huge wise old owl and walked very sadly to a big tree. Roger Skunk told the wise old owl that all the other animals ran away from him because of his bad smell. The wise old owl also admitted the bad smell of Roger Skunk. And after hearing this, Roger Skunk started crying very loudly. Then the owl suggested him to go to the wizard. Okay, wizard means jadugar. To go to the wizard who could solve his problem. Roger Skunk went to the wizard, and wizard looked like a short heightened old man, and he asked Roger Skunk that who sent him. Roger Skunk replied that the wise old owl. Roger Skunk said that the old owl told him that wizard could help him to remove his bad smell. The wizard, with the help of his magic wand, asked Roger Skunk that what he wanted to smell like. Roger Skunk thought and said roses. Okay, what he said? Roses. Wizard chanted some mantra, and all of a sudden, Roger Skunk started smelling like roses. The wizard asked for 7 pennies, but Roger had only 4. The wizard told Roger Skunk to go to the end of the lane and turn around 3 times and could find 3 pennies in the magic well. Roger Skunk did the same and found 3 pennies, and very happily he went into the forest. All the other animals started liking the smell of Roger Skunk and played with him n number of games. Okay, सारे जो जितने भी animals थे वो सब वहाँ पे आ गए और उसके साथ खेलने लगे. And at last they all ran to their mommies. Joe thought that the story was over, like it always did. But this time Jack added a twist in the story. He continued the story. Now, Roger Skunk went to his mother, and his mother was shocked and asked him that who made him smell so bad. Roger Skunk said that it was the wizard. His mother took him to the awful wizard who made him smell like roses, which according to her was awful. Okay, awful means bad. Roger Skunk's mother went to the wizard's home and hit the wizard with an umbrella over the head and asked him to change the smell of the roses and bring his natural smell back. The wizard did the same. Jo then asked her daddy that why didn't wizard hit the mommy's head with an umbrella?
But Jack continued the story and told her that Skunk and her mother came back home and their daddy also reached home and they had their supper. Supper means dinner, and then the story was over. So, according to Jack, the story was over. So Jo had many questions in her mind about Roger Skunk. She asked her daddy that whether the other animals did not run away, but Jack told her that they got used to of the way Roger Skunk was and played with him without any problem. Jo found the mommy stupid as she asked the wizard to change the Roger Skunk's roses smell and wanted the wizard to take the magic wand and hit that mommy right over the head. But Jack was trying to defend Roger Skunk's mother as he was defending his own mother and told her that mommies are always right. Jack also told Jo that little skunk loved his mother more than other animals and his mommy knew that what was right for him. Okay, now Jack asked Jo to take deep sleep and put all the questions of her on rest. Jack went downstairs and Claire, his wife, had spread the newspapers and opened the paint can. Claire, who was Claire? Claire was Jack's wife and Joe's mother. Okay, so what she was doing, she spreaded the newspapers and opened the paint can. Claire found the story was very long. Okay, she told Jack that story was very long. Jack watched his wife working hard on the woodwork. Jack did not want to speak with her, work with her, to touch her, etc. He watched everything with extreme tiredness. Okay, and here the story is ended. राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी इस स्टोरी का. सो हर सैटरडे इवनिंग को जैक अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुनाया करता था जब वो 2 years की थी और अब जो 4 years की हो गई है. राइट, जैक की स्टोरी का मेन कैरेक्टर रॉजर होता था जिसको वो रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक का नेम दे दिया करता था. पर आज की स्टोरी में रॉजर स्कंक मेन कैरेक्टर था. अब जैक जो को स्टोरी सुनाता है कि रॉजर स्कंक की स्मेल बहुत बुरी हुआ करती थी और फॉरेस्ट के दूसरे एनिमल्स उसको इग्नोर किया करते थे उसकी बैड स्मेल की वजह से और उसको बुरी बदबू वाला स्कंक बुलाते थे. जो बहुत सैड हो जाती है ये जानकर कि रॉजर स्कंक को दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं. ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है. जैक अब बताते हैं कि रॉजर स्कंक डिसाइड करते हैं कि वो बड़े से ट्री के पास जाएं जहां पर एक आउल रहता है, वाइज आउल रहता है और वही उसकी मदद कर सकता है. रॉजर स्कंक आउल को बताते हैं कि उसकी बैड स्मेल की वजह से सभी एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं. आउल भी एडमिट करता है कि रॉजर स्कंक की स्मेल सच में बहुत बुरी है. यह सुनकर जो स्कंक होता है, रॉजर स्कंक होता है, वो जोर जोर से रोने लगता है. क्या करता है वो? जोर जोर से रोने लगता है. वो कहता है अब आउल भी मुझे यही बोल रहा है कि मेरी स्मेल बहुत बैड है. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे चैप्टर पेजेस नहीं चेंज कर रही हूँ, ये आप करिएगा. मैं आपको समरी दे रही हूँ पूरे चैप्टर की. राइट, एक बार मैंने आपको इंग्लिश में दी है और अब मैं आपको हिंदी में दे रही हूँ. राइट, तो रॉजर स्कंक जो होता है वो ये सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि आउल जो है वो भी कह रहा है कि उसकी स्मेल बहुत बैड है. फिर आउल सजेस्ट करता है कि रॉजर स्कंक को विजार्ड मीन्स जादूगर के पास जाना चाहिए और वही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. रॉजर स्कंक जादूगर के पास जाता है और जादूगर बहुत छोटी हाइट का ओल्ड मैन होता है और रॉजर स्कंक से पूछता है कि तुमको यहाँ किसने भेजा. रॉजर स्कंक बताता है जादूगर को कि वाइज ओल्ड आउल ने उसको वहां भेजा. रॉजर स्कंक विजार्ड को बताता है, विजार्ड मीन्स जादूगर को बताता है कि वाइज ओल्ड आउल ने ये बताया है कि जादूगर उसकी बैड स्मेल को हटा सकता है. जादूगर ने मैजिक वैंड की हेल्प से रॉजर स्कंक से पूछा कि वो किसकी स्मेल चाहता है, तो रॉजर स्कंक ने रिप्लाई किया कि रोजेस की. जादूगर ने कुछ मंत्र बोले और एकदम से रॉजर स्कंक रोजेस की तरह स्मेल करने लगा.
जादूगर ने 7 पेनीज, पेनीज मीन्स पैसे, 7 पैसे पेनीज मांगे रोजस कंग से, पर उसके पास सिर्फ 4 पेनीज थे। बाकी के 3 पेनीज के लिए जादूगर ने रोजस कंग को सजेस्ट किया कि वो एक गली के एंड तक जाए और 3 बार घूमे, और एक मैजिक वेल में उसको 3 पेनीज मिल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 3 पेनीज लेकर खुशी खुशी रोजस कंग फॉरेस्ट से जा रहा था कि दूसरे एनिमल्स उसके पास आ गए, उसकी रोजेस वाली स्मेल की वजह से। और क्या किया उन्होंने, वो सब पास में आ गए। उनको लगा कि इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी स्मेल किसकी है, तो वो सब पास में आ गए और उसके साथ गेम्स खेलने लगे। लास्ट में सब अपने अपने घर चले गए, अपनी मम्मीज के पास। जो को लगा कि स्टोरी ओवर हो गई है, पर इस बार जैक ने स्टोरी में ट्विस्ट डाला हुआ था। जैक ने स्टोरी को कंटिन्यू किया। रॉजर्स कंग जब अपने मम्मी के पास जाता है और उसकी मम्मी उससे पूछती है कि किसने उसकी इतनी बैड स्मेल दी है, तो रॉजर्स कंग बताता है कि जादूगर ने दी है। रॉजर्स कंग की मदर उसको जादूगर के पास ले जाती है, जिसने रॉजर्स कंग को रोजेस की स्मेल दी है। और मम्मी के अकॉर्डिंग वो स्मेल बैड है, मम्मी को वो रोजेस वाली स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो स्मेल क्या है, बैड है। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं रोजर्स कंग से, और वो लोग उसके साथ खेल रहे थे। पर मम्मी के अकॉर्डिंग रोजर्स कंग की नेचुरल स्मेल ही अच्छी स्मेल है। ठीक है। रोजर्स कंग की मदर जादूगर के घर जाती है और उसके सर पर अम्ब्रेला मारती है और कहती है कि रोजर्स कंग की नेचुरल स्मेल को वापस करो, स्मेल को वापस करो तुरंत। उनके रोजेस की स्मेल नहीं चाहिए उनको। जादूगर सेम ऐसा ही करता है और रोजर्स कंग की बैड स्मेल वापस आ जाती है। जो जैक से पूछती है कि विजार्ड रोजर्स कंग की मदर के हेड में को अम्ब्रेला से हिट क्यों नहीं करता, पर जैक जो की बातों को टाल देता है और फिर कहता है कि मम्मी और रोजर्स कंग घर चले जाते हैं और रोजर के डैडी भी घर आ जाते हैं और सब मिलकर रात का खाना खाते हैं, और स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। जो के माइंड में रोजर्स कंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बाकी एनिमल्स रोजर्स कंग से फिर से दूर तो नहीं भागते, पर जैक बताता है कि उनको रोजर्स कंग की स्मेल की आदत हो जाती है। ठीक है। तो जो के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो कहीं दूर तो नहीं भागने लग जाते हैं फिर से, कि रोजर की स्मेल इतनी बैड हो गई है। पर वो जो के फादर जैक बताते हैं कि उनको आदत हो जाती है रोजर की स्मेल की, और अब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो को रोजर्स कंग की मदर बहुत बुरी लगती है। जो को बहुत बुरा लगता है, रोजर्स कंग की मदर बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसने रोजर्स कंग की रोजेस वाली स्मेल को जादूगर के थ्रू हटवाया, और जो चाहती थी कि विजार्ड रोजर्स कंग की मदर के सर पर अम्ब्रेला से हिट करे, अम्ब्रेला से नहीं मैजिक वैंड से हिट करे। पर जैक रोजर्स कंग की मदर को डिफेंड कर रहा था और कह रहा था कि मॉमीज हमेशा राइट होती हैं। जैक ने जो को बताया कि रोजर स्कंक अपनी मदर को दूसरे एनिमल से ज्यादा प्यार करता था और उसकी मम्मी को पता था कि उसके लिए क्या राइट है। ठीक है। तो जैक ने जो को ये भी बताया कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी को दूसरे एनिमल से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मम्मी की बात मानी, और उसको पता था कि उसकी मम्मी को पता है कि उसके लिए क्या राइट है। अब जैक जो को बोलता है कि वो गहरी नींद लें और अपने क्वेश्चंस को रेस्ट पर डाल दें। जैक नीचे जाता है और क्लेयर उसकी वाइफ सारे न्यूज़पेपर्स को फैलाकर पेंट के कैन को ओपन करके बैठी होती है। क्लेयर कौन है? क्लेयर जैक की वाइफ है और जो की मदर है। ठीक है। और वो क्या कर रही होती है, उसने न्यूज़पेपर्स को फैलाया हुआ होता है और पेंट के कैन को खोला हुआ होता है। क्लेयर ने जैक से बोला कि आज की स्टोरी तो तुम्हारी काफ़ी लंबी हो गई, पहले तो काफ़ी छोटी होती थी, आज काफ़ी बड़ी हो गई स्टोरी। जैक अपनी वाइफ को वुडवर्क करते हुए देखा करता था। उसने देखा अपनी वाइफ को वुडवर्क करते हुए, और जैक उससे कोई बात नहीं करना चाहता। जैक इतना थक गया था कि उसने कोई बात नहीं करना चाहता था, ना ही वो कोई काम करना चाहता था, ना ही वो उसको टच करना चाहता था। जैक अब सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से और थकान के साथ देख रहा होता है, और यहीं ये चैप्टर का एंड हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको सारे पैराग्राफ्स का पूरे चैप्टर की समरी एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। ये चैप्टर, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी, okay, as I have given you every paragraph's explanation to make this chapter clear and interesting.
राइट. सो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ग्रेड 12 स्टूडेंट्स. आप ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के बीच में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज इम्पैक्टफुल लर्निंग विद Nupur. Thank you so much.